Any doubt? Not yet. Sorry, Abhishek? Nothing as of now. Once we'll go from SAP, then maybe we'll have a lot of questions. But Acha. as of now, whatever you have taught, that it's okay. Right. So let's start the system today. Right. So बाकी topic हम system पे करेंगे. So this is our GUI. जो ये icon है, that is called GUI. Graphical User Interface. Graphical User Interface. So by using this icon, so we log in the SAP system. Okay. So this is, double click on this. So these are the different servers, right? So हम लोग, because this is the server which we have discussed around, we can have 1000 client under one server. So this client और इस server का actually identification क्या है? These are the three things which differentiate the servers, whether it is a first server, second server, or third server, like it is a development server, quality server, or production server, right? So so we don't have multiple servers, we have only one server, so that we are considering as training system or production system. So whatever you can take that. So how to identify which server is that, like production? Actually, the identification only from this description. If I change this description, you can see this. Otherwise, basis person will give you these different servers and will tell you, so this server you will use for this purpose, this server you will use for this purpose, and this server you will use for this purpose, right? So they because basis guy gives you this input, and based on that you do your activities. No, my question is like, this is what do you say, sandbox, I think. नहीं, actually इसको हम sandbox भी बोल सकते हैं. Then we can use term as a IDAS system, IDAS, Okay. IDAS system, right? No, Which is okay. Normally we have development, quality, and production. Right. So out of these, which one is this one? ASAP? No. मैंने आपको बोला ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके इस डिस्क्रिप्शन के बेस्ड पे अभी ये आइडेंटिफाई होगा कि ये डेवलपमेंट है, क्वालिटी, बिकॉज वी डोंट हैव 3 सर्वर्स. ये जो सर्वर का जो एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज ऑल थ्योरेटिकल. और ये जो 3 सर्वर्स हैं, तीनों सर्वर का जो आपका फ्रंट एंडिंग जो है वो एग्जैक्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. बट डिफरेंस क्या है? जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस और जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि ये जो डेवलपमेंट है उसके 2 क्लाइंट होते हैं. मेजरली 3 क्लाइंट्स रहते हैं, हम 2 यूज करते हैं जनरली, गोल्डन क्लाइंट और टेस्टिंग क्लाइंट, राइट? सो अब हम इसको लॉग इन करते हैं. नाउ विल सी द क्लाइंट्स. If I enter, suppose my basis guy has actually created 2 clients, 800 and 810. So 800 he has created for golden client, and 810 he has created for testing client. Or suppose 811 he has created for sandbox, right? Other server we can use for quality purpose, for testing purpose, and the final server will be for final data, live data. So अभी हमारे पास जो है that is 800 client, user ID and password. So if you have the user ID and password, those user ID and password will have the specific to client specific user ID passwords होते हैं, because every client has a specific user ID and passwords. अब ऐसा नहीं है कि ये यूजर आईडी पासवर्ड आपका 899 में भी रन होगा, नहीं होगा. ये सिर्फ और सिर्फ क्रिएटेड है 800 के लिए, राइट? एंड व्हाट्स द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ क्लाइंट? क्लाइंट हैज ए स्पेसिफिक डेटा, मींस
अगर आपने कोई भी एक डेटा क्रिएट किया, सपोज आपने कंपनी कोड क्रिएट किया, वो कंपनी कोड आप अगर उसको 0001 में व्यू करना चाहेंगे तो नहीं होगा, बिकॉज वो जो आपने क्रिएट किया है वो क्रिएट किया 800 में। एक मिनट जस्ट, यस रविंद्र। ठीक है, हाँ मैं जानता हूँ यार, मैं जानता हूँ। अभी मेरी कौशल से बात हो रही थी, कौशल कहता है क्या, मैंने कहा कौशल दीज आर टू ओनली स्मॉल थिंग्स व्हिच आर पेंडिंग, जिसको हम लोग काम कर रहे हैं वो रिसॉल्व हो जाएगा। अभी तो डेवलपमेंट सर्वर है, उसके बाद क्वालिटी भी जाएगा, क्वालिटी में भी इशू आ सकते हैं, तो ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ होता है, हम अपने एंड पे स्ट्रांग रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अराउंड 6 बजे के आसपास फिर कॉल करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, सॉरी। So now we'll log in this user ID with user ID and password. So you all, I think, get the user ID and password. If Puneet, I think I sent Yes, sir. 4 or 5 user IDs. Yeah, sir. Yes. Yes, sir. I've already logged in, sir. Got into the screen where you are already there. Right. So now And, we'll start using the SAP system. So I just log in, click on enter. So there are two screens. First is SAP Easy Access screen. What is the use of SAP Easy Access screen? SAP Easy Access screen होता है end user activity. End user. End user activity. Other screen is SAP Easy. SAP Customizing IMG, which is called SAP Customizing Implementation Guide. ये consultant है, यहाँ से पूरा customization होता है. And now type of data. We have 3 different type of data. One is configuration data, Master and end user. master Transactional data, and transactional. transaction data. ये जो डेटा है ये कंसल्टेंट डेटा है, जो कि SAP कस्टमाइजिंग IMG स्क्रीन से होगा। ये डेटा हमारा, ये दोनों डेटा हमारा यहां होगा, और ये एंड यूजर एक्टिविटी है। ये इसका कॉम्बिनेशन है, राइट। तो पहला स्क्रीन क्या है? SAP Easy Access। यहां पर एंड यूजर एक्टिविटीज होती हैं, बिकॉज देयर आर डिफरेंट मॉड्यूल्स हियर. We just click on this logistics module. Having different logistics is a broader term, which is having different module, right? It's like material management. Material management module क्या होता है? It takes care of the AP, accounts payable part, vendor part, right? जिसमें परचेज रिलेटेड एक्टिविटीज रहती हैं, प्लस जिसमें लाइबिलिटीज होती हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं जिसको हम. यहाँ आते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, AR, accounts receivable. Means receivable means customer, right?
सो ये हमारा कस्टमर रिलेटेड डेटा है। यहाँ पर फिर आते हैं प्रोडक्शन के अंदर डेटा। प्रोडक्शन रिलेटेड डेटा क्या होगा? जिसमें प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें बॉम्ब्स बनते हैं, राउटिंग्स बनती हैं, प्रोडक्शन रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होता है, राइट? सो दैट फिनिश गुड्स वी सेंड बैक टू MM मॉड्यूल, स्टोर में भेजते हैं हम उसको, देन स्टोर डिपार्टमेंट वहां से डिस्पैच को भेज देता है। सो दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ प्रोडक्शन, राइट? देन वी कम टू दिस प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल क्या देखता है? यहाँ पर मेंटेनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज होती है कि कोई मटेरियल का कोई प्रॉपर कोई आपको स्टोरेज करना है, कोई पर्टिकुलर उसका स्टोरेज रिक्वायरमेंट है कि उसको यहाँ पर आपको सपोज यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्लेस पे इस पर्टिकुलर आपको बहुत बड़ा एक रेफ्रिजरेटर चाहिए, वहां पर वो मटेरियल रखा जाएगा। रेफ्रिजरेटर का कोई प्रॉपर टेम्परेचर होगा, प्रॉपर उसका कोई मेंटेनेंस होगा, दैट यू टेक केयर बाय दिस प्लांट मेंटेनेंस। एंड अदर पार्ट इज सपोज आपकी जो मशीनरीज रहती हैं, आपका प्लांट का, आपके जो ओवरऑल जो मेंटेनेंस है आपका, वो सारा यहाँ रहता है। इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं, वो सब आपका प्लांट मेंटेनेंस देखता है। देन विल कम टू कस्टमर सर्विस मॉड्यूल। कस्टमर सर्विस मॉड्यूल वो एक्चुअली पार्ट है बिजनेस का जहां पर आप कोई अगर कोई इक्विपमेंट सेल करते हैं या कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसके अगेंस्ट में आपको डिफरेंट कोई वारंटी सर्व करनी है, आपको कोई इंस्टॉलेशन रिलेटेड कोई एक्टिविटी सर्विस सर्व करनी है, देन आपको कोई रूटीन उसकी कोई विजिट्स आपको कुछ करने हैं वहां पर। एग्जाम्पल के लिए आप कोई एसी बाय करते हो, उस एसी बाय करने में आपके पास उस जो एसी का बॉम्ब होता है उसमें क्या क्या रहता है? एसी का इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट, उसका एक रिमोट, उसके अलग से सेल्स, उसका अलग से यूजर मैनुअल, राइट? प्लस उसके कुछ नट बोल्ट्स वगैरह रहते हैं, प्लस उसका जो बैकएंड का जो स्टैंड रहता है जिसपे एसी हैंग होता है, वो सब आपका इसके अंदर रहता है। ये तो आपका पार्ट हो गया जो आपने सेल किया। उसके बाद उस एसी की इंस्टॉलेशन के लिए नेक्स्ट डे कोई पर्सन आपके घर पे आता है, वो आपके कस्टमर सर्विस का पार्ट है। उसके अलावा रूटीन सर्विसेज जो टेक केयर की जाती हैं वो उसका पार्ट है, प्लस कॉल्स वगैरह आती हैं, उसकी आपकी सर्विस मैनेजमेंट है, कोई एएमसी है, वो सब कस्टमर सर्विस के अंदर टेक केयर होता है। देन आते हैं हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंदर कंप्लीट क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज होती है कि मटेरियल की क्वालिटी किस किस स्टेज पे कैसे कैसे होना है। रॉ मटेरियल क्वालिटी होना है, एसएफजी क्वालिटी होना है, एफजी क्वालिटी होना है, किस स्टेज पे होना है, दैट टेकन केयर बाय क्वालिटी। देन प्रोजेक्ट सिस्टम्स, ये हमारी रियल एस्टेट कंपनी के लिए यूज होता है। अब रियल एस्टेट कंपनी के अंदर प्रोसेस क्या होता है, या फिर कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं उनके अंदर ये यूज होता है। कैसे? सपोज आप एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, गवर्नमेंट ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब वहां क्या था, वो बिल्कुल रो रोड था जो कि फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्ट होना है। तो उसको आप क्या करेंगे, पहले प्रोसेस होगा, आप उसकी पहले पूरी लेंथ एनालिसिस करेंगे, उसका विड्थ एनालिसिस करेंगे, देन उसके बाद आप उसका डिगिंग स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद आप उसकी फिलिंग करेंगे, देन उसके ऊपर आप रोड बनाएंगे, देन उसके ऊपर फिर रोलर होगा। वो सारी एक्टिविटीज आपकी रहती हैं और हर एक एक्टिविटी को आप विद बजट कैप्चर कर सकते हैं, विद परफॉर्मेंस एनालिसिस कैप्चर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पर कि कितने टाइम के अंदर कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट होगी, कब किस दिन वो एक्टिविटी परफॉर्म होगी, उसके ऊपर कितना बजट लगा। अब उसके बेसिस पे आप फ्यूचर में ये देख पाएंगे कि ये प्रोजेक्ट हमारा इस बजट से स्टार्ट हुआ था, इस दिन स्टार्ट हुआ था, और ये प्रोजेक्ट हमारा इस पर्टिकुलर डे पे खत्म हुआ, अंडर बजट हुआ या ओवर बजट हुआ। तो आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की मेजर कंपनीज एसएपी पे काम कर रही हैं। उसमें से एग्जांपल लेते हैं हम, एम्स, डिफेंस, आर्मी, राइट, पावर ग्रिड, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस, राइट। तो ये सभी कंपनीज एसएपी पे हैं इस टाइम। मैं अभी एक बिकॉज हमने पीछे अभी एक प्रोजेक्ट किया, NHSI DCL, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कुछ ऐसा कंपनी का नाम है। तो वहां पर भी PS यूज हो रहा है, जो मिस्टर गडकरी के पास है, जो हमारा डिपार्टमेंट, वो सारा हर जगह एसएपी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मेजर कंपनीज इस टाइम एसएपी पे काम कर रही हैं, गवर्नमेंट कंपनीज भी। नाउ वी हैव एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी। यहाँ पर क्या होता है कि एनवायरमेंट का मींस कि आप कितना पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि क्या उसके मेजर्स होंगे, क्या आपको उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस वगैरह हैं। हेल्थ के लिए क्या होता है, एम्प्लॉयज की हेल्थ रिलेटेड कोई एम्बुलेंस वहां पर है, फर्स्ट एड बॉक्स है। सेफ्टी रिलेटेड मींस कि सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं सेफ्टी के लिए, ड्रेस, हेलमेट, राइट। सो ये सब, बूट्स, सपोज अब कोई आर्मी हमारी बिकॉज 14,000
ऊपर हिल्स के ऊपर है, तो वहां पर उनको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स रखने हैं वो सब यहाँ पर देखा जाता है। तो ये हमारे मॉड्यूल आते हैं लॉजिस्टिक्स के अंदर। अब इनमें से बहुत सारे मॉड्यूल्स का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है, तो वो हमारा फाइनेंस मॉड्यूल हो जाएगा। नाउ विल कम टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के दो मेजर पार्ट हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, एफआई एंड सीओ। ये फर्स्ट एफआई है, तीसरा सीओ है। हमारा जो मॉड्यूल है वो एफआई है, जिसमें हम बाद में इंटीग्रेशन पार्ट करेंगे विद अदर मॉड्यूल्स। फाइनेंशियल्स के अंदर 5 साइड हैं एफआई के अंदर, जनरल लेजर, एआर, एपी, बैंक और फिक्स्ड एसेट्स। ये 5 साइड हमें करनी है, राइट। तो ये हमारा एंड यूजर एक्टिविटी है आज की डेट में। तो अभी हम लोग चलते हैं कंसल्टिंग साइड पे। तो ये जो हमारी एक्टिविटीज हैं, ये एक्टिविटीज प्योरली फाइनेंस है, जिसमें ना तो एमएम इन्वॉल्व है, ना एसडी मॉड्यूल इन्वॉल्व है, ना ही पीपी इन्वॉल्व है। तो ये प्योर फाइनेंस है। तो हमारा जो एमएम एसडी पीपी है वो लॉजिस्टिक्स है, ये सब। तो एक्टिविटीज परफॉर्म होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट से, उसका इंपैक्ट होगा फाइनेंस पे। तो हमारा जो अभी जो अंडरस्टैंडिंग है, स्टार्टिंग की जो हमारी क्लासेस होंगी वो कंप्लीट एफआई साइड से होंगी, बाद में हम लोग इंटीग्रेशन क्लासेस करेंगे अपनी, जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग लॉजिस्टिक्स का। विल कम टू दिस जनरल लेजर। जनरल लेजर में क्या रहता है? जनरल लेजर के अंदर हमारे पास अगेन 2 टाइप का डेटा होता है एंड यूजर साइड से, मास्टर डेटा और ट्रांजैक्शन डेटा। मास्टर डेटा क्या होता है हमारा इसमें? जीएल अकाउंट्स। हम मास्टर डेटा जीएल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। जीएल अकाउंट्स क्या होते हैं? जो पी&एल बैलेंस शीट के जो फर्दर बाइफर्केशन होता है, जैसे एक्सपेंस के जीएल्स हो गए, सैलरीज हो गई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, स्टाफ वेलफेयर हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरीज हो गई, रिपेयरमेंट स्टाफ, इसके अलावा हमारे पास फ्यूल एक्सपेंस हो गया। तो ये सारे जीएल्स बनेंगे। फिर रेवेन्यू साइड पे जीएल बनेंगे, एक्सपोर्ट रेवेन्यू है या हमारा डोमेस्टिक रेवेन्यू है, कोई अदर रेवेन्यू है, सपोज कोई इंटरेस्ट से कुछ आ रहा है, डिविडेंड से कुछ आ रहा है, तो ये सारे जीएल्स बनेंगे। देन लायबिलिटी और एसेट साइड पे जो हमारी बाइफर्केशन है उसकी, लायबिलिटी और एसेट्स का शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, देन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर में सारे जीएल्स क्रिएट होते हैं। तो ये हमारा मास्टर डेटा है। ट्रांजैक्शन डेटा में क्या होता है? जीएल अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ जेवी पास होता है, नंबर 1। जेवी पास करना क्या होता है? विदाउट कस्टमर, विदाउट वेंडर, विदाउट फिक्स्ड एसेट्स, ऑल ट्रांजैक्शंस आर जेवीज। उसके बाद में हमारे पास कुछ रिपोर्टिंग पार्ट होता है कि जीएल की हमें रिपोर्ट्स देखनी है। जीएल की रिपोर्ट्स क्या हो सकती हैं? हमें रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि जीएल हमने क्या क्या पोस्टिंग की लास्ट मंथ, उसके प्रायर मंथ में जो पोस्टिंग्स हुई और जो लास्ट मंथ में पोस्टिंग हुई उसका एनालिसिस क्या है, उसका वेरिएंस क्या है। हमारे जो सपोज जून मंथ में जो एक्सपेंस हुए थे और जो मई मंथ में एक्सपेंस हुए, उसमें वेरिएंस बहुत ज्यादा क्यों आ रहा है, बट एक्सपेंस वाइज हम लोग यहाँ पर रिपोर्टिंग ले सकते हैं। उसके अलावा जीएल के ओवरऑल बैलेंसेस आप देख सकते हैं कि मेरा ट्रायल बैलेंस हो सकता है, बैलेंस शीट हो सकता है, ये जीएल का पार्ट है। देन विल कम टू दिस मंथ एंड क्लोजिंग्स। जीएल के अंदर मंथ एंड क्लोजिंग्स क्या होती हैं? डेप्रिसिएशन रन कर दिया, या फिर हम जीएल की बात करें तो उसके अंदर जेवी पास हो गए, राइट। बैलेंस शीट, पी&एल आपने देख लिया, राइट। तो ये एक्टिविटीज आपकी मंथ एंड एक्टिविटीज है। नाउ विल कम टू एआर। एआर के फिर अगेन उनका, अब एआर का मास्टर क्या है? एआर का मास्टर होता है कस्टमर मास्टर। जीएल का मास्टर क्या था? जीएल मास्टर। फिर यहाँ पर ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? यहाँ पर कस्टमर का इनवॉइस बनता है, कस्टमर का पेमेंट आता है, क्रेडिट डेबिट मेमोज होते हैं, उसके एडवांस पेमेंट आता भी है, जाता भी है, राइट। फिर कुछ रिवर्सल्स भी होते हैं। ये तो हमारा ट्रांजैक्शन रिलेटेड हो गया। उसके बाद हमारे पास फिर रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स में क्या रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर में? कस्टमर की रिपोर्ट्स होती हैं, एजिंग रिपोर्ट निकाल दिया, उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकाल दिया। उसके अलावा कस्टमर का कोई टीडीएस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो आ गए। उसके बाद हमारे कुछ क्लियरिंग प्रोसेस है एसएपी के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। क्रेडिट मैनेजमेंट आता है इसमें कि किस कस्टमर को कितना लिमिट तक आपको क्रेडिट देना है, उसके बियॉन्ड आप अलाउ नहीं करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस आपका एआर का पार्ट है विदाउट एसडी मॉड्यूल। अभी हम वो बात कर रहे हैं। फिर आते हैं हम लोग एपी के अंदर। एपी मींस एमएम मॉड्यूल प्लस फाइनेंस मॉड्यूल। एपी के अंदर मास्टर होगा वेंडर, नंबर 1। ट्रांजैक्शंस होंगी वही इनवॉइसेस, पेमेंट्स, कस्टमर वेंडर क्रेडिट डेबिट मेमोस, राइट, एडवांस पेमेंट्स। नेक्स्ट उसके बाद रिपोर्टिंग पार्ट क्या होगा हमारा? एजिंग रिपोर्ट्स हो गई, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस हो गए, राइट। नेक्स्ट इसके अलावा हमारे पास कोई आप फिक्स्ड एसेट्स भी बाय कर सकते हैं। ये हमारा एपी है। पीरियड एंड क्लोजिंग्स में क्या होता है एपी के अंदर? कोई फॉरेन करेंसी की कोई ट्रांजैक्शंस रन होनी है, वो हो गई आपकी। इसके कोई बैलेंसेस शो करने हैं आपको, वो एक्टिविटीज हो गई आपकी।
कोई पेमेंट आपको मंथ एंड पे रन करनी है, वो एक्टिविटीज हैं, कोई रिकरिंग एंट्रीज हैं जो आप मंथली बेसिस पे विद सेम अमाउंट आप ऑनगोइंग आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज हैं वो आप पास कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं बैंक्स के अंदर। बैंक्स के अंदर हमारा प्रोसेस क्या होता है, हमारा पैसा आता है, पैसा जाता है, रिकंसिलिएशंस होता है, ये हमारा बैंक रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। फिक्स एसेट्स के अंदर आते हैं, फिक्स एसेट्स हम बाय करते हैं, उसको सेल करते हैं, उसको डिस्कार्ड करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं, उसका डेप्रिसिएशन रन करते हैं, राइट। तो ये हमारे मंथ एंड एक्टिविटीज भी हैं और ये हमारी रियल टाइम पोस्टिंग्स भी हैं। देन उसकी रिपोर्ट्स पे आते हैं, कितना कौन सा एसेट बाय हुआ, कौन सा हमारा लास्ट प्रीवियस ईयर से रनिंग एसेट है हमारा, कौन सा एसेट इस साल हम इस महीने हमने सेल किया, ये सारा हमारा रिपोर्टिंग पार्ट है। अब हम आएंगे अपने कंसल्टिंग पार्ट पे। कंसल्टिंग पार्ट के लिए हम जाएंगे IMG स्क्रीन पे, टूल्स, कस्टमाइजिंग, IMG SPRO। सो इसको हम यहां से राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू फेवरेट्स, ये यहां चला जाएगा। तो फर्स्ट वाले को हम डिलीट कर देते हैं, डबल क्लिक करेंगे इस पे, देन गो टू SAP रेफरेंस IMG एंड नेक्स्ट इज दिस इज द स्क्रीन। सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है जो स्टार्ट करते हैं हम, स्ट्रक्चर। SAP का एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का जो पहला एलिमेंट है वो है कंपनी कोड। कंपनी कोड इज ए 4 डिजिट up to 4 digit alphanumeric code, right? Right. So under this company code we may have multiple plants, right? So इसमें हमारे पास different multiple products हो सकते हैं जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनकी रिपोर्टिंग एक्टिविटीज हैं जो हम टेक केयर करते हैं। सो कंपनी कोड इज ए इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग लीगल एंटिटी, राइट। लीगल एंटिटी मतलब जो आपकी कंपनी ROC में रजिस्टर्ड है, दैट इज योर लीगल एंटिटी, राइट, जिसके आपको कंप्लीट जो कंप्लायंस है वो आपको फुलफिल करने होते हैं, मंथ एंड ईयर एंड जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे कंपनी कोड से। गो टू एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, इसको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। गो टू डेफिनेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड, राइट। हम इसको क्लिक करेंगे, इस बटन को। सो इसमें एक्चुअली देयर आर 2 थिंग्स, कंपनी एंड कंपनी कोड। सो अभी हम कंपनी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कंपनी कोड क्रिएट करेंगे अभी स्टार्टिंग में, बिकॉज उसकी ऐसा अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कंपनी की, तो हम लोग कंपनी कोड के ऊपर काम करेंगे। एंड देयर आर 2 ways टू क्रिएट द कंपनी कोड। फर्स्ट वे, टू टेक द एग्जिस्टिंग टेम्पलेट एज ए रेफरेंस and create the company code by copying the existing template, right? Other option is to create a new company code। और जो SAP का जो स्टैंडर्ड कंपनी कोड है जिससे हम जनरली रेफरेंस लेते हैं, स्टैंडर्ड कंपनी कोड इज 0001। One question, yes, like अगर हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम SAP यूज हो रहा है कंपनी में, तो टेम्पलेट कौन सा होगा? वो टेम्पलेट SAP स्टैंडर्ड है या फिर कुछ पहले का टेम्पलेट जैसे आप कह रहे हैं कॉपी हाँ, फ्रॉम द टेम्पलेट? देखिए क्या है, जो मैं अगर आपको स्टैंडर्ड की बात करता हूं, स्टैंडर्ड मतलब ग्लोबली स्टैंडर्ड है वो, राइट। ये अगर आप जर्मनी में इंप्लीमेंटेशन कर रहे होंगे तो भी ये कंपनी कोड एग्जिस्ट करेगा। हम जो प्रेफर करते हैं, हम जर्मनी का SAP AG कंपनी कोड उठाते हैं, बट मैं जो प्रेफर करता हूं, मैं कॉपी वाला ऑप्शन प्रेफर नहीं करता हूं। बट इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज इसके ये हैं कि कुछ आपके पास डिफॉल्ट डेटा आपको मिल जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि कुछ ऐसा एक्सेस डेटा आ जाता है, समटाइम्स वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन फ्यूचर। ये 2 अप्रोच रहती हैं इसमें अभिषेक की, एक कि आप टेम्पलेट को एज ए रेफरेंस लो और अपना कंपनी कोड क्रिएट कर लो, राइट। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपना कंपनी कोड क्रिएट करो। बिकॉज मेरा जो अप्रोच रहता है, मैं कंपनी कोड हमेशा क्रिएट करता हूं, बट ऑप्शन है आपके पास इस पे भी जाने का, आप ट्रायल कर सकते हो। देखिए मैं जो आपको यहां पर, बिकॉज सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको एक चीज पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर कुछ ऐसी गाइडेंस भी चलेगी, ऐसे कुछ पॉइंट्स भी चलेंगे जो मैं आपको करवा नहीं रहा हूं प्रैक्टिकली, बट मैं आपको
गाइड कर रहा हूं कि आप ये ट्राई करके देखो सिस्टम में। बिकॉज अगर आप ये सारे पॉइंट्स को अगर सिस्टम में प्रैक्टिस करते हो तो इसका एडवांटेज मिलने वाला है आपको बहुत बड़ा, कि आप बहुत कुछ ऐसा भी सीखोगे जो स्टैंडर्ड में नहीं आपको करने को मिलेगा। तो ट्राई करो जितना मैक्सिमम, जो मैं आपको यहां पर गाइड कर रहा हूं उन सब चीजों को ट्राई करके देखो। अगर कोई इश्यू आएगा तो हम लोग उसको टेक केयर करेंगे, उसको ट्राई करते हैं रिजॉल्व करने का। ओके, सो जस्ट फॉर कंफर्मेशन, आज जो आप पढ़ा रहे हैं, देन वी हैव टू चेक ऑन आर एसएपी लॉगिन आईडी, ये वो कैसे क्रिएट होता है? यस यस। अब तो एक it's a चीज homework. हमारा जो मैंने आपको एक चीज बोली थी, क्लाइंट हैज ए स्पेसिफिक डेटा। अब मैंने जो यूजर आईडी पासवर्ड्स दिए हैं आपको वो सबके अलग अलग है जी। इन दिस केस अगर मैं कोई कंपनी कोड क्रिएट कर रहा हूं तो वो कंपनी कोड आप भी व्यू कर सकते हो, बिकॉज जो कंपनी कोड आ रहे हैं वो क्लाइंट स्पेसिफिक है, वो यूजर आईडी स्पेसिफिक नहीं है। आपको ये चीज समझनी है सिस्टम में। कोई डाउट इसमें? हाँ ओके, एक क्वेश्चन है लाइक क्लाइंट के ऊपर ही, जैसे आपने बताया क्लाइंट को, पहले भी आपने यही बताया था कि क्लाइंट का स्पेसिफिक डेटा होता है, ठीक है ना? बट क्लाइंट ऐसे, अगर मैं एसएपी के लिए मानूं तो आप क्लाइंट है उसके लिए, जिन्होंने आपने हमको वो यूजर आईडीज क्रिएट करके दी हैं? नहीं 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 Okay. नहीं नहीं नहीं, वो क्लाइंट टर्म और एसएपी क्लाइंट टर्म में डिफरेंस है। ये जो क्लाइंट है वो है 800 विच इज एसएपी क्लाइंट। एसएपी का जो इनबिल्ट क्लाइंट है, जो इनबिल्ट नहीं बोलेंगे, जो कि बेसिस पर्सन ने हमें क्रिएट करके दिया है क्लाइंट, हम उस क्लाइंट को एज ए डेवलपमेंट क्लाइंट यूज करेंगे, एज ए गोल्डन क्लाइंट यूज करेंगे। सपोज 800 को 801 उसने टेस्टिंग क्लाइंट क्रिएट किया, तो हमारा पहला जॉब जो होगा वो हमारा 800 पे रहेगा, क्योंकि जो एक्टिविटीज होंगी वो सारी 800 क्लाइंट पे होने वाली है। अब जो आप जनरल क्लाइंट की डेफिनेशन क्या होती है, कस्टमर, ये वो नहीं है क्लाइंट, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। This is server basically, server client. Sorry? This is server client. Yes, this client comes under server, right? Right. So हम रेफरेंस ना लेके हम सेकंड वाला ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। तो देखिए यहां पर 346 कंपनीज ऑलरेडी हैं, बिकॉज एवरी पर्सन इज क्रिएटिंग देयर ऑन कंपनी कोड। इवन मेरे भी इसमें जो मैं पढ़ाता हूं उसमें मैंने भी आई थिंक 15-20 कंपनी कोड्स तो मैंने भी क्रिएट किए होंगे इसमें भी। तो अगर आप स्टैंडर्ड देखेंगे एसएपी का, उसमें आपको अराउंड 100-150 कंपनी कोड्स मिलेंगे, जिसमें से 0001 एक है। ये ऊपर वाले सारे एसएपी के हैं। तो विच वी कैन टेक एज ए टेम्पलेट, अगर हम करना चाहते हैं एज ए टेम्पलेट ही ले सकते हैं इनको, अगर हम वो जो ले सकते हैं, लेकिन वो कॉपी पेस्ट आपने बताया। हाँ, टेम्पलेट के लिए यहाँ जाना पड़ेगा। हाँ, ओके। यहाँ पर यहाँ से 0001 एंड योर कंपनी कोड, राइट? तो अभी हम ये यूज नहीं कर रहे हैं, बैक करते हैं। न्यू एंट्रीज, कंपनी कोड इज IBM सपोज। अगर ये कोड अवेलेबल होगा तभी सिस्टम अलाउ करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मुझे पॉसिबिलिटी कम लगती है, बट यस, चेक कर लेते हैं इसको। सो कंपनी का कोड रखा हमने 3 डिजिट अल्फाबेट्स कंप्लीट। हमने यहां कोई न्यूमेरिक यूज नहीं किया है, बट आप कर सकते हैं, राइट? सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंपनी नेम पे। अब देखिए क्या है, एसएपी का जो फ्रंट एंड है ये फंक्शनल है। अगर आप इसके बैक एंड पे जाएंगे तो वो टेक्निकल है। आपने अगर कभी किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप होते हुए देखा हो, उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग लिखी जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है। ऐसे ही इसके बैकएंड पे भी प्योर कोडिंग है, राइट? अब जहां पर कोडिंग लिखी जाती है वहां पर हर एक फील्ड का बहुत स्पेसिफिक उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं अपनी, उसको बोलते हैं डेटा टाइप। देखिए
डेटा टाइप एक्चुअली उसके अंदर 2-3 पैरामीटर्स कवर होते हैं डेटा टाइप के अंदर। डेटा टाइप के अंदर सबसे पहले होता है लेंथ ऑफ द फील्ड। नंबर 1 लेंथ ऑफ द फील्ड, नंबर 2 टाइप ऑफ द फील्ड। टाइप मतलब क्या है? आप अगर सपोज कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, आपने एक बैंक में गए, आप एक फॉर्म फिल किया आपने, और वो फॉर्म सपोज उनके किसी सिस्टम पे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। आपके पास वहां पर एक ऑप्शन है डेट का, कि आप किस दिन ये अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, या फिर करंट डेट आपको डालनी है। क्या आप उस डेट की फील्ड में ABCD एंटर कर सकते हैं? हाँ, नहीं। यस, उसको टाइप बोलते हैं फील्ड का। लेकिन अगर आप नाम आपको एंटर करना है, क्या 1 2 3 4 एंटर कर सकते हैं नाम में? No. नहीं होगा, डेट ही राइट। तो कौन सी फील्ड को क्या प्रॉपर्टीज देनी है, क्या उसका डेटा एलिमेंट बनाना है, क्या वो टाइप होगा, वो सब बैकएंड पे डिफाइन रहता है। आप अगर अपनी नेट बैंकिंग यूज करते हैं और आपकी जो अगर आपकी यूजर आईडी सपोज न्यूमेरिक है, तो आप ABCD एंटर करेंगे, वो लेगा ही नहीं। लेकिन पासवर्ड में एक्सेप्ट कर लेता है वो, क्योंकि वो टाइप ही डिफाइन किया गया है बैकएंड पे, और उसको डेटा टाइप बोलते हैं। प्लस एक चीज और है, आपकी जो यूजर आईडी है वो सपोज 8 कैरेक्टर्स की है, आप 9th कैरेक्टर एंटर करेंगे, सिस्टम लेगा ही नहीं। लेकिन पासवर्ड आप 50 कैरेक्टर्स तक भी एंटर कर सकते हैं। तो वो डिफरेंशिएट बैकएंड पे कोडिंग के थ्रू किया जाता है। तो ये हमारा लेंथ ऑफ द फील्ड एंड टाइप ऑफ फील्ड। कितनी लेंथ होगी वो स्पेसिफाई की जाती है, एंड टाइप क्या होगा उसका, वो स्पेसिफाई किया जाता है। अब एक्चुअली SAP के अंदर फील्ड नेम, one is functional, another one is technical. फंक्शनल नेम इसका कंपनी कोड है, इसी फील्ड का टेक्निकल नेम बुकर्स होता है। कैसे पता लगा? देखिए, इस फील्ड पे आते हैं, अपने सिस्टम का F1 की प्रेस करेंगे, इसका आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, इसका डेफिनेशन मिलेगा कि व्हाट इज कंपनी कोड। जो SAP की लैंग्वेज में जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है, इज एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट विद इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये SAP की डेफिनेशन है कंपनी कोड की। बट आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो कुछ डिफरेंट मिलेगा आपको। अब आते हैं हम लोग इसके टेक्निकल इंफॉर्मेशन में। देखिए, इसका फील्ड का नाम क्या आ रहा है, बुकर्स। अब ये फील्ड नेम यूज कहां होता है? ये यूज होता है जब हम कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट देते हैं अबैप पर्सन को। टेक्निकल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है? सपोज कोई ऐसी रिपोर्ट जो SAP में एग्जिस्ट नहीं करती है, या किसी कंपनी की उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर उस रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर हमें एक डॉक्यूमेंट डिजाइन करके देना होता है। उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं FS, फंक्शनल फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्या कहता है कि आपको अगर बताना है अबैप पर्सन को, अबैप पर्सन कौन होता है? जिसको कोड लिखना आता है, बट उसको फंक्शनल नहीं पता है कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, किस डिपार्टमेंट में कौन सी एक्टिविटीज क्या होती हैं, और अकॉर्डिंगली क्या रिपोर्ट के अंदर डेटा आएगा, वो उसको कोई मतलब नहीं है, वो आप बताएंगे उसको, राइट? तो उस डॉक्यूमेंट, बिकॉज इट्स ए ब्रिज इन बिटवीन फंक्शनल पर्सन एंड टेक्निकल पर्सन। आपको टेक्निकल नहीं आता है, उसको फंक्शनल नहीं आता है, तो आप इस पे जाइए, F1 की प्रेस करिए, और यहां से आप निकाल के उसको बता दीजिए कि ये फील्ड आपको यहां पर प्रिंट करवानी है। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे हम लोग। अब इसकी फील्ड लेंथ क्या है? डबल क्लिक करिए इस फील्ड पे, ये देखिए इसकी फील्ड लेंथ। अब कुछ कंपनीज बोलती हैं जी फील्ड लेंथ 4 है, हमें 6 चाहिए। नहीं हो सकता। जो SAP की स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं उनका ना तो आप टाइप चेंज कर सकते हैं, ना ही उसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं। देखिए डाटा टाइप,
ना ही उसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं आप। तो हम आते हैं बैक। हर फील्ड का अपना अलग नेम है। अगर आप इस फील्ड पे F1 की प्रेस करेंगे, इस पे आएंगे, इसका BUTXT है, इसकी फील्ड लेंथ 25 कैरेक्टर्स है। नेक्स्ट आते हैं सिटी में। सिटी में हम एंटर करते हैं सपोज गुरुग्राम। क्या हम यहां पर ये एंटर कर सकते हैं GURUGRM? सिस्टम अलाउ करेगा बिकॉज कोई इनपुट सिलेक्शन नहीं है यहां पर। स्पेलिंग्स मिस्टेक अलाउड है, या कोई भी इंफॉर्मेशन आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन आप यहां पर एंटर कर रहे हैं वही इंफॉर्मेशन आपके आउटपुट्स में आने वाली है। सपोज आपने कोई कंपनी, कोई सी वेंडर को पीओ देना है, तो पीओ जब क्रिएट होगा वहां पर जो कंपनी की इंफॉर्मेशन पुल होंगी वो यहीं से पुल होंगी। अगर मिस्टेक है तो आपको करेक्ट करना पड़ेगा, राइट? जब आप करेक्ट कर देंगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, फिर वो अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट सर्वर के गोल्डन क्लाइंट से स्टार्ट होगा, देन क्वालिटी पे जाएगा, फिर प्रोडक्शन पे जाएगा। तो इट्स ए लेंथी एक्टिविटी। तो बेटर है कि मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कंट्री में। देखिए सिटी फील्ड और कंट्री फील्ड में डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ एक बटन आ रहा है, ये बटन होता है इनपुट सिलेक्शन का। हमने यहां पर कुछ फिक्स्ड वैल्यूज डिफाइन की गई है। इस बटन को क्लिक करते हैं, ये सारी वैल्यूज है। इसमें 237 कंट्रीज ऑलरेडी डिफाइंड है। तो हम यहां पर इंडिया सर्च करेंगे, इसका कोड है IN। नेक्स्ट करेंसी में आते हैं। अब करेंसी के अंदर आपको एक साइन दिखाई दे रहा है, स्क्वायर के अंदर एक टिक का साइन है, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड फील्ड या मैंडेटरी फील्ड। अगर आप इस फील्ड में कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करेंगे तो सिस्टम एरर देगा। देखिए ये हमारे पास रेड कलर आ रहा है, तो इसमें भी 3 तरह के साइन होते हैं। Red color is error, green color is warning, information, sorry, this is warning. ये जो एरर है इसको आपको रिजॉल्व करना होगा, देन सिस्टम विल अलाउ यू टू सेव दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, राइट? बट ये जो इंफॉर्मेशन है दोनों, इसमें आप एंटर करके बाईपास कर सकते हो इसको। ये सिर्फ आपकी या तो इंफॉर्मेशन है, आपको वार्निंग कर दे रहा है सिस्टम। उस वार्निंग को पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे। वार्निंग इसलिए दी जाती है कि फर्दर कहीं कोई इंपैक्ट ना हो। अगर आपको लगता है कि कोई इसका इंपैक्ट नहीं है, इंपैक्ट एनालिसिस कर चुके हैं, आप समझ चुके हैं, देन आप उसको एंटर करके बाईपास कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर INR एंटर करेंगे बिकॉज इंडिया का यहां पर। अब देखिए हमने लैंग्वेज नहीं डाला पर सिस्टम एरर नहीं दे रहा है क्योंकि ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है। सेव करेंगे इसको। यहां पर हम बताएंगे ये कंपनी है, डॉक्टर है, मिस है, मिसेज है, आप क्या है, ये आप कंपनी है। कंपनी में IBM लिमिटेड। यहां पर आप सर्च टर्म दे सकते हैं। सर्च टर्म का पर्पस क्या रहता है? हमारे पास कुछ ऐसे 2 लेवल के सर्च होते हैं जहां पर हम किसी भी पर्टिकुलर एक टर्म को या किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा को हम किसी लेवल तक सर्च कर सकते हैं। सपोज हमारे पास 500 कंपनी कोड्स है, उनमें से 150 कंपनी कोड इंडिया में है। हर स्टेट में सपोज आपका एक कंपनी कोड है। अब आपको ये सर्च करना है कि आउट ऑफ 500 कंपनी कोड्स इंडियन कंपनी कोड कितने हैं, तो आपने यहां डाल दिया इंडिया, बिकॉज आप ये कंपनी इंडिया में क्रिएट कर रहे हो। सपोज दूसरा कंपनी कोड आपने डाल दिया दिल्ली, दूसरा सर्च टर्म डाल दिया दिल्ली, और दिल्ली के अंदर सपोज 7 कंपनी कोड्स हैं। तो आपने क्या किया, अगर ये 2 पैरामीटर्स आपने एंटर किए तो उस बेसिस पे आपने 7 सर्चेस पे आप आ गए आउट ऑफ 500। तो आपने उसको इजी कर दिया, डेटा को फिल्टर आउट कर दिया आपने डेटा। तो ये डेटा फिल्टर करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रीट। सर्च करने के लिए वो परसेंटेज, अगर जैसे IBM ढूंढना है, IBM लिमिटेड, हाँ,
तो परसेंटेज IB लिख के परसेंटेज डालेंगे तो SAP नहीं सर्च यहाँ करता? परसेंटेज नहीं होता है, यहाँ परसेंट नहीं होता है, यहाँ स्टार होता है। ओके राइट, तो यहाँ पर परसेंटेज नहीं चलता है। जो आपका आपका जो सर्च क्राइटेरिया है वो स्टार से स्टार्ट होता है, स्टार पे एंड होता है। ओके, तो लाइक अगर हमने इंडिया और दिल्ली ये सर्च कोड नहीं डाले और हम सीधा स्टार IBM स्टार लिख देते हैं, तो वो केवल IBM सर्च नहीं कर देगा? IBM अब आप एक लिमिटेड। चीज बताइए, हर कंट्री के अंदर IBM ही है। ओके कहीं पर IBM लिमिटेड है, कहीं IBM AG है, कहीं कॉर्पोरेशन है, कहीं INC है। राइट, तो हर जगह IBM है। ओके बट ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि IBM इंडिया सर्च करना है? हाँ, अगर उसके नाम में लिखा गया IBM इंडिया तो आप कुछ मत करिए, सीधा कंपनी कोड के नाम में डालिए IBM इंडिया है, वही आएगा। लेकिन IBM इंडिया भी 10 है। तो ये एक्चुअली आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप वो क्राइटेरिया एंटर कर सकते हैं या ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ओके, ये प्री डिफाइंड जैसे हमने इसमें मानो इंडिया और दिल्ली लिख दिया, तो जब एंड यूजर, ओके, ये हमारे लिए ही है केवल कंसल्टेंट के लिए, या जब एंड यूजर काम कर रहा होगा उसके लिए भी ये सब चीज देखिए, सेम ही होगी? जो डेटा अभी हम मैनेज कर रहे हैं कंसल्टेंट डेटा है, Okay. लेकिन जो सर्च कौन करेगा वो एंड यूजर ही करेगा। जी, बिकॉज जो भी डेटा मैनेज हो रहा है वो एंड यूजर पर्सपेक्टिव हो रहा है। तो एंड यूजर को ये पता होना चाहिए कि सर्च कोड जो है, सर्च टर्म जो है वो इंडिया और दिल्ली है। जब आप जाएंगे ना कंपनी कोड जब सर्च करने जाएंगे तो वहां पर फील्ड्स आती हैं बहुत सारी, तो उसमें सर्च टर्म का भी ऑप्शन आता है। तो ये सब ना ट्रेनिंग का पार्ट है। ओके आप जब तक यूजर को कन्वे नहीं करेंगे कि इसका पर्पस ये है, तब तक उसको कैसे पता लगेगा? ओके, तो आपको ये ट्रेनिंग का पार्ट है, आप ट्रेन करते हैं उसको SAP पे। ओके, So basically, this will act as keywords, right? I mean, yeah, keywords. Yes, these are keywords. Okay. गूगल पे सर्च करते हैं ना, Correct. कीवर्ड्स है ये। यस, स्ट्रीट डालते हैं, ये हमारा सपोज स्ट्रीट है, ये हाउस नंबर है, या सपोज ऑफिस नंबर है। पोस्टल कोड, सपोज ये हमारा पोस्टल कोड है, हमने इसको गुरुग्राम कर देते हैं। यहां पर हम सिटी डालते हैं, कंट्री डालते हैं, कंट्री आया है, और स्टेट पे आते हैं। स्टेट, ये हमारे रीजन स्टेट्स होते हैं, ये सारे स्टेट्स हैं। हरियाणा का 07 है, दिल्ली का 30 है, यूपी का 24 है, 24. पंजाब का 19 है। राइट, अकॉर्डिंगली जो भी हमारे डिफाइंड है वो ये है। लेकिन इसके अंदर एक चेंज है, जो अगर आपने कभी GST के कुछ डेटा अगर देखा हो तो उसके स्टेट्स डिफरेंट है, इसके स्टेट्स डिफरेंट है। GST के अकॉर्डिंग दिल्ली का स्टेट कोड 07 है, राइट, हरियाणा का 06 है। राइट, तो यहां क्या है, जितने भी इंप्लीमेंटेशन जुलाई 17 ऑनवर्ड्स हुए हैं उनमें सब करेक्ट डेटा है, करेक्ट रीजन्स है। लेकिन ये जो सिस्टम है, हम चाहें तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, बट हमने चेंज नहीं किया, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अगर कोई पुराना इंप्लीमेंटेशन चलता आ रहा है तो SAP ने एक ऐसा आपको टेबल दिया है मेंटेन करने के लिए, जहां पर आप इन दोनों को पैरेलली मेंटेन करते हैं। तो सिस्टम में क्या होता है, जब GST की रिक्वायरमेंट आती है तो सिस्टम वो वाले कोड उठाता है, जब SAP की रिक्वायरमेंट आती है तो ये कोड उठाता है। आपको ध्यान होगा 1 जुलाई 17 को GST लाइव हुआ था। राइट, उस दिन कुछ बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए थे। हमने क्या किया था, अब हमें तो ये बताया गया कि ये स्टेट आपको चेंज करने हैं। अब जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे, वहां के किसी पर्सन ने बिना किसी एनालिसिस किए उसने उठा के सारे कोड GST के अकॉर्डिंग कर दिए। अब जो बंदा बैठा हुआ था US में, उसके वो वेंडर थे जो इंडिया में, उसके भी कोड चेंज हो गए, उसका सिस्टम ही चलना बंद हो गया। रात को 2 बजे हमने बैठ के चेंज किए थे वो सारे। तो आप जो डेटा चेंज करने जा रहे हैं, जो एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं, उसका आपको इंपैक्ट एनालिसिस पहले से ही करना होता है। आपको समझना होता है कि इसका इंपैक्ट कहां कहां जा सकता है। तो हम यहां पर हरियाणा करते हैं। नेक्स्ट आते हैं टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल। जो डेटा आप यहां एंटर कर रहे हैं वही आउटपुट में दिखेगा। आउटपुट का मतलब क्या है, PO हो सकता है, परचेज ऑर्डर, सेल्स इनवॉइस हो सकता है, जो आप कस्टमर को बेचते हैं। यहीं से ही डेटा पुल होता है, क्योंकि ये डेटा हमेशा वेरिएबल होता है। वेरिएबल का क्या मतलब होता है, जो वैल्यूज आप डालेंगे उसके अकॉर्डिंग डेटा उठेगा।
आपने डाला IBM लिमिटेड, दिल्ली की एक दिल्ली में है, एक सपोज बैंगलोर में है, तो आप अगर IBM लिमिटेड डाल रहे हैं, बैंगलोर डाल रहे हैं, तो डेटा बैंगलोर का ही पिक होके आएगा, उसका कंपनी को डिफरेंट होगा। तो ये सब हम लोग जो टर्म्स हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये लोग हम इन चीजों को टेक केयर करते हैं बेसिकली, ओके करते हैं, राइट। अब यहां पर एक स्क्रीन और आ रही है, देखिए एक टर्म है एसएपी में, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, customizing request, customizing TR, workbench TR। कस्टमाइजिंग TR और वर्कबेंच TR में डिफरेंस क्या है? ये फंक्शनल होता है, ये टेक्निकल होता है, और TR generates only in case of configuration। ओनली इन केस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। TR जनरेट होती है सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में होती है। क्या मतलब होता है इसका? पर्पस ऑफ TR टू मूव config data from one client to another client। वन क्लाइंट टू अनदर क्लाइंट। अब इसका मतलब क्या है? आपके पास डेटा है गोल्डन क्लाइंट में, उसको मूव करना है टेस्टिंग क्लाइंट में, उसके लिए ये TR क्रिएट। अब TR होता क्या है? TR होता है ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, जिसके अंदर अगर हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कस्टमाइजेशन रिलेटेड या कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड, तो सिस्टम क्या करता है, हमसे फोर्सफुली इस TR के अंदर वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज को स्टोर कर लेता है, फोर्सफुली करवाता है हमसे ऐसे भी है। अब ये जो एक्टिविटी आपने परफॉर्म किया, इस एक्टिविटी के लिए आप एक नया TR बनाएंगे। अभी जो TR चल रहा है 671 बन रहा है, हम यहां से एक नया TR बनाते हैं। FICO क्रिएट कंपनी कोड IBM, सपोज हमने ये डेट डाला। अब TR नंबर वहां था 67 कुछ था, यहां पर 682 आ गया। जो करंट नंबर रनिंग होगा, जो भी रनिंग नंबर होगा आपका करंट में, वो नंबर सिस्टम आपको अलॉट कर देगा। ठीक है, तो अभी करंट नंबर 682 चल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो भी हमने किया है उसका फिल करना है। द रिक्वेस्ट नंबर ऑटोमेटिकली जो रीसेंट नंबर होगा इट विल पिक बाय सिस्टम। देखिए आप क्या करते हैं, अपने डेस्कटॉप पे जब कोई फोल्डर सेव करते हैं या कोई फाइल सेव करते हैं, उसका अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप उसका एक नाम डिफाइन कर देते हैं। ओके, ऐसा ही होता है। क्यों करते हैं? सो दैट इजीली आइडेंटिफाई कर पाए जब भी रिक्वायरमेंट हो, या सर्च कर पाए उसको। सेम पर्पस इसका। तो जो अभी जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे अभी एक MM का डिस्क्रिप्शन आ रहा था, हम उसको ओके कर देते, जो रिक्वेस्ट नंबर आ रहा था पहले 671, तो अगर हम उसको ओके करते, ग्रीन बटन से टिक मार्क करते, तो क्या वो पिक करता सिस्टम? यस, वो उसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट में ही स्टोर कर लेता। ओके, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। आज से लगभग 10 साल पहले मेरे पास किसी मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया। वो बोलता है कि अमित, मेरे लाइव सिस्टम से मेरा कंपनी कोड डिलीट हो गया। हुआ क्या था, उन साहब ने ट्रायल करने के लिए डेवलपमेंट सर्वर में गोल्डन क्लाइंट में कंपनी को डिलीट कर दिया, ट्रायल करने के लिए, जो कि कभी है, बिकॉज इट्स ए काइंड ऑफ इलीगल थिंग इन टर्म्स ऑफ SAP, बिकॉज ये अलाउड नहीं होता है। बट वहां ओपन था और उन्होंने कुछ ऐसे
बिकॉज ऐसा कुछ एक्टिव नहीं किया हुआ था जिससे वो सिस्टम उसको स्टॉप करता, तो वो बाय मिस्टेक उससे गलत हो गया और डिलीट हो गया। अब हुआ क्या, उसने जो वो डिलीट किया वो एग्जिस्टिंग किसी रिक्वेस्ट में सेव हो गया। वो रिक्वेस्ट थी कोई एचआर मॉड्यूल की। ओके। उस रिक्वेस्ट को नेक्स्ट डे उन्होंने मूव करना था प्रोडक्शन में टेस्ट करने के बाद। उन्होंने क्वालिटी पे टेस्ट नहीं किया डेटा और उन्होंने प्रोडक्शन में डाल दिया उसको। पता लगा एसएपी से आपका रियल टाइम सिस्टम से डेटा ही उड़ गया। अब आप कहीं कुछ कर ही नहीं पा रहे, कोई एक्टिविटी ही परफॉर्म नहीं हो रही है। एसएपी ने 20 लाख रुपीस चार्ज किए थे उस कंपनी से उसको रिस्टोर करने के लिए। तो जब हम रियल सिस्टम में काम करते हैं तो बहुत केयरफुली हम इन चीजों को करते हैं। तो ये जो अभी मैं इसको डिटेल में, हमारा एक टॉपिक है वो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ही डिस्कशन है वो सारा हमारा। हम लोग 3rd या 4th क्लास करेंगे आज से उसकी। कोई डाउट? क्लियर है सर अभी तक? सॉरी, अभी तक क्लियर है सर। आवाज क्लियर नहीं है आपकी। ओके, अभी क्लियर है अभी तक। ओके ओके, एक चीज और, रिक्वेस्ट के अंदर आपने केवल वो बटन प्रेस किया था तो उसने लेटेस्ट नंबर ले लिया था? नहीं, क्या होता है उसमें जब डिस्क्रिप्शन डालेंगे तो लेटेस्ट नंबर आएगा। ओके। तो ये हमारा डेटा सेव हो गया, राइट। अब ये रिक्वेस्ट है कहां? एक ट्रांजैक्शन कोड होता है SC09 UDTR। मैं आपको बताऊंगा ये क्या ट्रांजैक्शन कोड क्या होते हैं, ये सब हमारे डिस्कशन के पॉइंट्स हैं। डिस्प्ले में आते हैं। देखिए हमने ये किया था, रिक्वेस्ट नंबर 682 था, इसका एक नंबर वो जनरेट होता है, नेक्स्ट नंबर 683। तो जो अब नया रिक्वेस्ट जनरेट होगा या कोई नया एक्टिविटी में आप नया रिक्वेस्ट में अगर उसको मर्ज करेंगे तो वो नेक्स्ट नंबर होगा 684 एंड 685। एक TR होता है, एक सब TR होता है। अगर हमने देखें इसमें क्या एक्टिविटी किया था हमने, देखिए ये एक्टिविटी किया था हमने, ये एक्टिविटी किया, ये 800 क्लाइंट में IBM कंपनी कोड बनाया हमने। इसको हम लोग डिटेल में करेंगे बाद में। सो ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है। क्लोज करते हैं, इनको क्लोज करते हैं, एरो बटन्स को, इसको भी क्लोज करेंगे, इसको भी क्लोज करते हैं। नाउ विल गो टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू। अकाउंटिंग में नहीं जाना है, न्यू में जाना है। ग्लोबल सेटिंग्स, लेजर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज फिस्कल ईयर वेरिएंट। देखिए हमने यहां पर डिस्कस किया था फिस्कल ईयर वेरिएंट। फिस्कल ईयर वेरिएंट हैज 2 डिजिट की। स्टैंडर्ड में अप्रैल टू मार्च में कौन सा कोड होता है? K4 Oh, V3. V3 is Yeah. for April to March. and what about Jan to December? K4. K4। वही सेम हम यहां करने जा रहे हैं, बट इसको हम थोड़ा डिटेल में करते हैं। तो हमने डिस्कस किया था, इफ यू हैव मल्टीपल कंपनी कोड, सपोज इंडिया में 1, इंडिया में 2, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस, तो वहां पर हमें वेरिएंट जो क्रिएट करना था वो वेरिएंट हमने क्रिएट किया था। V3 हम इन तीनों को एक साथ असाइन कर सकते हैं बिकॉज सेम फिस्कल ईयर ये लोग शेयर करते हैं, सेम फाइनेंशियल ईयर यूज करते हैं। जुलाई टू जून हमने सपोज V1 बना दिया, ये V2 बना दिया। ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड ये और ये दो, राइट। तो अब हम इसकी डिटेलिंग करते हैं। सो यहां पर हमारा एक होता है, अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है अप्रैल 1 से मार्च 31। अब एक चीज बताइए, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है आज की डेट में जो चल रहा है? 2021। हाँ 2021। अगर हम 20 बोले तो उसमें क्या कंफ्यूजन है क्या कुछ? नो सर। 20
एक तो टर्म है 20, एक है टर्म 2021, दोनों में डिफरेंस है क्या? Yes, sir. हाँ 20 is like 10th calendar December. year. नो, मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ. फाइनेंशियल ईयर 2020 इज व्हाट? इज इट 10 सेम एज 2021 और नॉट? No, different है. हाँ 20 is Jan to December and 2021 is नो 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 नो, April to आई एम May. सेइंग इंडिया फाइनेंशियल ईयर इज 2020. उसकी डेफिनेशन क्या है? Because in India, our financial year start from 1st April. ठीक है. मे बी एंडिंग बाय 20. नहीं, मैं देखिए, हम अगर मैं किसी को जनरल टर्म में बोलता हूं मेरा फाइनेंशियल ईयर 2020 है, दैट इज अंडरस्टूड कि ये 2021 है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. मैं बोलता हूं 2021, दिस इज फाइन. मैं बोलता हूं 20, दिस इज फाइन. 20 भी अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है, मार्च 31 तक जाता है. 2021 भी अप्रैल 1 से और 31 मार्च तक जाता है. देयर इज नो कंफ्यूजन. ऐसे भी इसी को फॉलो करता है. आप कुछ भी यूज कर सकते हो टर्म, राइट? तो अब इस केस में क्या है, किसी भी फाइनेंशियल, इंडिया के फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारे पास एक तो फाइनेंशियल ईयर होता है, एक कैलेंडर ईयर होता है. हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2020. इसका कैलेंडर ईयर क्या है, या फिर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अप्रैल 1 टू दिसंबर 31. इसका कैलेंडर ईयर क्या है? अप्रैल टू दिसंबर. कैलेंडर ईयर इज 2020, राइट? यहां पर आते हैं जनवरी 1 टू मार्च 31. इसका कैलेंडर ईयर क्या है? 2021. 2021. कितने पीरियड्स हैं इसमें? 9 + 3. 9 + 3. टोटल कितने हो गए? 12. तो एसएपी के अंदर यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हम जब यहां पर अपना फिस्कल ईयर बनाते हैं. इसमें क्या होता है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, इसको हम 12 तक ले जाते हैं, राइट? इसमें डेज कितने होते हैं फर्स्ट मंथ में? 31. 31. इसमें 29 एंड 29 ही लेंगे. होता. एक सेकेंड. हाँ, ओके, मीनवाइल वन क्वेश्चन, अगर आप जैसे आप फाइनेंशियल ईयर में 2020 लिख देते तो उसका क्या इम्पैक्ट होता, क्योंकि अब तो क्लैरिटी है कि अप्रैल से मार्च चल रहा है ये. हाँ. अगर 2020 लिख देते तो उसमें भी यही क्लैरिटी होती कि वो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, अगर कोड हमारा देखिए, V3 डाला दोनों तो. टर्म्स सेम है, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें. 2021 और 20 में कोई डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ एसएपी. ओके, तो फाइनेंशियल ईयर में भी हम 2020 डाल सकते थे, उसका कैलेंडर ईयर 2020 होता, मंथ होते 9 और जिसका कोड देखिए, होता मैं वो आपको ये V3. बताना चाह रहा हूं कि अगर एसएपी में आपको फाइनेंशियल ईयर 2020 सुनने को आता है तो वो अंडरस्टूड है कि अप्रैल 1 से स्टार्ट होगा 20 से और 31 मार्च 21 तक जाएगा. ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. तो इन केस अगर वो K4 लेके चल रहा है उसमें भी उसमें कोई डाउट नहीं है, जैन टू दिसंबर ही होता है वो. okay. उसको तो आप फाइनेंशियल ईयर 2021 बोल ही नहीं सकते ना, वो तो बीसी है. नहीं, किस अगर भी बोलते हैं. जैसे अगर हम यूएस में किसी क्लाइंट के यहाँ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और वो बोलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2020, तो हम उसको मार्च टू अप्रैल लेके चलें या जैन टू दिसंबर लेके चलें? देखिए, वो तो आपको कंट्री स्पेसिफिक समझना है ना कि उस कंट्री में फाइनेंशियल ईयर चलता क्या है. ओके, फाइन फाइन फाइन, फिर ठीक है. एक सेकेंड, इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम आया है. यस,
मेरा सिस्टम हल्का हैंग हो गया है, एक सेकेंड। Okay, I open it again. यहाँ पर 29 हायर साइड पे लेंगे, लीप ईयर वाला। 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31, राइट? ओके, अब ये बताइए हमारा पहला पीरियड कौन सा है अकॉर्डिंग टू इंडिया फाइनेंशियल ईयर? अप्रैल। अप्रैल 4th month। ठीक है, ये पीरियड कौन सा होगा? 11th 10th। sorry। अच्छा, अब ये हमारा कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, कौन से कैलेंडर ईयर का है? ये 9 पीरियड्स 2020 के, और ये तीनों 21। हाँ 2021। चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करता हूं यहाँ पर। सो दीज आर 2020 and these belongs to 2021। इसीलिए यहाँ पर हम -1 -1 -1 करते हैं, बाकी सबको 0 करते हैं। देखिए एसएपी क्या कहता है? एसएपी कहता है कि हम कैलेंडर ईयर में बिलीव करते हैं, हम कैलेंडर ईयर में काम करते हैं, लेकिन आपकी कंट्री अगर कैलेंडर ईयर में काम नहीं करती है तो उसका अरेंजमेंट है हमारे पास, ये अरेंजमेंट है उसका। कोई डाउट इसमें? सर ये -1 थोड़ा कंफ्यूज। मैंने आपको एक चीज बोली थी, हमारा फाइनेंशियल ईयर आज की डेट में 20-21 नहीं है, 20 है, जिसको हम अप्रैल 1 to 31 मार्च तक लेके जाते हैं। अगर वो 3 पीरियड 2021 से बिलोंग करते हैं, इसलिए उसको -1 करके 2020 में ले आया। +1 क्यों नहीं? बस जस्ट वीक क्वेश्चन, +1 क्यों नहीं? +1 करते तो 2022 हो जाता ना, वो 22 हो जाता। चलिए अगर मैं कहता हूं मेरी कंपनी इस ईयर को 2021 बोलती है, मतलब वो 3 पीरियड की वजह से उसने एक +1 कर दिया, तो यहां पर +1 होता, यहां +1 होता, और यहां पर 0 होता। नहीं, अगर अभी सिचुएशन में लेके हम 2020 मान रहे हैं हमारा कैलेंडर ईयर को, और फाइनेंशियल ईयर को, और जो 3 मंथ्स है वो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में जाएंगे। तो हम अगर बेस लेके चल रहे हैं 2020, तो उसको प्लस करके 1 जाएंगे, तभी तो 21 बनेगा, या फिर कुछ और फंडा है? नहीं, देखिए क्या है, 2 अप्रोच चल सकती है यहाँ पर। एक अप्रोच चल सकती है 2020 वाली, एक अप्रोच चल सकती है 2021 वाली। अगर आप अपने फाइनेंशियल ईयर को 2021 बोलते हैं, अगर आप अपने फाइनेंशियल ईयर को 2021 में लेके जाते हैं, आप बोलते हैं कि मेरा 21 स्टार्ट होता है अप्रैल 1 2020 से, एंड होता है 31 मार्च 2021, तो आप यहां पर +1 कर सकते थे, तो आपका वो 2021 में चला जाता। लेकिन आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर की जो बुक्स हैं वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही करनी है, जो उनका फाइनेंशियल ईयर है, बट आपके इंटरनल क्या है वो आपका मैटर है। कोई डाउट? No, sir। 99.5% अप्रोच चलती है ये वाली, बट मैंने इस अप्रोच पे भी काम किया, +1 वाली पे भी। हम 2020 में है, सेम ईयर है, दैट्स व्हाई 0 हमने डाला वहां पर। यस 2020 + 0 = 2020। हाँ, 2021 -1 = 2020। ओके, ऐसे ज्यादा सिंपल है सर। हाँ ये समझ आ गया। देखिए क्या है, ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी की क्या अप्रोच है।
जिसमें इंप्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, वहां पर ऐसा था +1 वाला। तो ये सर हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना? नहीं नहीं, ये कंपनी पे डिपेंड करता है। कंपनी मतलब जहां इंप्लीमेंटेशन करवा रहे हैं आप। बिकॉज आप देखिए, आप हमारा SAP करने का पर्पस क्या है? हम सिर्फ ये नहीं करेंगे कि जो आपकी एक पर्टिकुलर कंपनी कर रही है, हम वो सारी पॉसिबिलिटीज समझेंगे जो SAP में हो सकती हैं, क्योंकि हम कंसल्टिंग करने जा रहे हैं, हम कोई एंड यूजर जॉब करने नहीं जा रहे कि यही होता है। कंसल्टिंग के अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, तो सारी पॉसिबिलिटीज पढ़ने वाले हैं हम लोग। अब जो मैंने आपको ऑप्शन बताया, ये आपके लिए एक होमवर्क हो सकता है आपका, अगर आप ट्रायल करना चाहें इस पे तो। +1 यस, ट्राई करिए, एक नया कंपनी कोड बनाइए, उस पर लगाइए, देखिए क्या होता है। देखिए, आपको ना जब भी कोई ट्रायल करना है ना, तो उसका जो नेट इफेक्ट क्या है वो रिपोर्ट्स है, उसका जो एंड रिजल्ट वो रिपोर्ट्स है। तो आपको रिपोर्ट के एंगल से सोचते हुए चलना है कि क्या हो सकता है। SAP का मतलब ये नहीं है कि आपने सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन कर दिया और काम खत्म हो गया। मुझे बोलते हैं, मुझे तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा आता है, मुझे बहुत लोग बोलते हैं, और जब वो ऐसा बोलते हैं तो मुझे लगता है इनको कुछ नहीं आता होगा, कंफर्म्ड, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन कुछ होता ही नहीं है SAP में। बहुत छोटी सी एक्टिविटी है। एक्टिविटी होती है अंडरस्टैंडिंग, एक्चुअली क्यों किया जा रहा है। और जितना मैंने आज तक फेस किया, बिकॉज मैंने भी जब स्टार्ट किया था पढ़ना, तो मुझे भी कॉन्फ़िगरेशन ही सिखाया गया था। बिजनेस मैंने अपने आप सीखा। एक्चुअल अप्रोच वही है SAP सीखने की, कि आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए, आपको पॉसिबिलिटी समझ में आनी चाहिए, ऑप्शंस क्या हैं और वो क्यों हैं। SAP इसलिए नहीं पढ़ना है कि कॉन्फ़िगरेशन सीखनी है। कॉन्फ़िगरेशन तो कुछ होता ही नहीं है। आप आज जो कॉन्फ़िगरेशन में आपको 3 या 4 महीने में पढ़ाने वाला हूं, आप 3 घंटे में कंप्लीट करेंगे लास्ट में, कोर्स खत्म होने के बाद, या उससे पहले ही करना स्टार्ट कर देंगे। 3 घंटे में आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो क्या 3 घंटे के लिए आपको कंपनी जॉब देने वाली है? नहीं, 4 महीने के लिए जॉब देने वाली है, जो काम 4 महीने होना है। और वो क्या है? वो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है। कोई कंपनी आपको 15 लाख रुपए 3 घंटे की जॉब के लिए नहीं देने वाला है। कॉन्फ़िगरेटर नहीं बनना है। IBM, एक्सेंचर जैसी कंपनी कॉन्फ़िगरेटर बनाती है लोगों को, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेने वाला बंदा ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ है, आप बैठे यहां पर सिर्फ कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। हमें वो नहीं करना है, हमें बिजनेस समझना है। ये हमारा अपना अंडरस्टैंडिंग है कि अभी हम लोग थोड़ा स्लो मोड में चल रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस से इसको स्पीड अप करेंगे। हाँ, हम लोग आज इसको यहीं एंड करते हैं, और 1 मिनट पहले हम लोग एक क्रिएट जरूर कर लेते हैं। फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड, मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट। हाँ, अब एक चीज हो रहा है, जो फिस्कल ईयर इट्स ए 2 डिजिट अल्फान्यूमेरिक कोड। स्टैंडर्ड हमने बात किया V3 एंड K4। हम लोग अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, हम अपना ही क्रिएट करेंगे यहाँ पर। अब SAP के अंदर ना एक और एक्चुअली एक टर्म चलता है। जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं, जो भी आप एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो V3 है या K4 है या कंपनी कोड है या चार्ट ऑफ अकाउंट्स है या पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है, व्हाटएवर कोड यू आर क्रिएटिंग इट, that has to be defined, that has to be understand at what level you are creating that code. What level means, level क्या होता है? तो टॉप मोस्ट लेवल है SAP का, वो क्लाइंट है। क्लाइंट मतलब क्या? 800 जो हमने क्रिएट किया था। नेक्स्ट लेवल क्या हो सकते हैं? कंपनी कोड भी हो सकता है, चार्ट ऑफ अकाउंट भी हो सकता है, और वो डिफरेंट लेवल्स भी हो सकते हैं। तो हमें ये समझना है अब इसका मतलब क्या होता है। हम एक क्लाइंट में कितने कंपनी कोड क्रिएट कर सकते हैं? 1000। ओके, ये किसने बताया? Or maybe 000 to 999. I'm very confusing. ओके, एक सर्वर में कितने क्लाइंट क्रिएट हो सकते हैं? एक। ओके, और कोई आंसर? एक सर्वर में कितने क्लाइंट हो सकते हैं? हाँ, मल्टीपल हो सकते हैं सर। कितने? मल्टीपल कर सकते हैं, कितने, कई सारे कर सकते हैं। कितने सारे? नंबर्स क्या है?
देखिए हमने क्या पढ़ा था, 200. ये देखिए, I gave this answer for the हाँ company code. मैंने क्लाइंट का आंसर कंपनी कोड के लिए दे दिया। हाँ, नहीं वो भी सही नहीं है। अच्छा, इसका उल्टा होना था आई थिंक, चलिए सर्वर आते में हैं, ठीक 1000। है, दैट्स फाइन, बिकॉज किए हुए हमें थोड़ा टाइम हो गया है इसमें, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं फिर से। अंडर वन सर्वर यू कैन क्रिएट 1000 टाइम्स 1000 क्लाइंट्स, स्टार्ट फ्रॉम 000 to 999, नंबर वन, राइट? One client, under one client you can create n number of company codes. अब एक चीज बताइए, क्लाइंट ऊपर है या कंपनी कोड बड़ा है? क्लाइंट बड़ा है या कंपनी कोड बड़ा है? क्लाइंट। हाँ, Company code. Oh, client. क्यों? क्योंकि क्लाइंट के अंडर में हम कंपनी कोड क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, ओके ओके, अब आइए यहाँ पर वापस। जब हमने डिस्कस किया कि जो हमारा क्लाइंट है उसमें हम n नंबर ऑफ कंपनी कोड क्रिएट कर सकते हैं। दैट मींस एक क्लाइंट में मल्टीपल कंपनी कोड हो सकते हैं। हमने देखे थे 346 कंपनी कोड ऑलरेडी थे सिस्टम, ठीक है, हमने देखा था। तो एक क्लाइंट में हमने 346 कंपनी कोड क्रिएट कर रखे हैं अभी। अब क्या है, वो बोलता है जो फिस्कल ईयर वेरिएंट क्रिएट होता है वो क्लाइंट लेवल पे क्रिएट होता है। इसका मतलब बताइए मुझे। एक बार क्वेश्चन फिर से, फिस्कल ईयर वेरिएंट created at client level, इसका मतलब क्या है? at fiscal year created at client level, इसका मतलब क्या है? क्लाइंट जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम जियो लेवल पे देखें, मेरा एक क्लाइंट यूरोप में है हाँ। और एक क्लाइंट मेरा एशिया में है। नहीं, क्लाइंट एशिया जरूरी नहीं है ना, हो सकता है कि एक ही क्लाइंट में आपके पूरा वर्ल्ड उसी में हो। क्योंकि हमने क्या बोला, एक क्लाइंट में मल्टीपल कंपनी कोड हो सकते हैं। वो कंपनी कोड इंडिया का भी हो सकता है, जापानीज भी हो सकता है, चाइनीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर वो उस कंपनी की जो रिपोर्टिंग होगी वो एक ही फॉलो करेंगे, वो चाहे। हाँ, नहीं, देखिए क्या है, रिपोर्टिंग हमेशा कंपनी कोड लेवल पे रहेगी। ओके। क्योंकि आप अगर सपोज आपके पास एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल इंडिया, आईबीएम इंडिया, आईबीएम यूएस, सो आईबीएम इंडिया की तो अलग आप से आईबीएम होगी। इंडिया का एक कोड होगा, आईबीएम यूएस का दूसरा कोड होगा। यस। तो आप जो डेटा निकालेंगे आईबीएम इंडिया का या आईबीएम यूएस का निकालेंगे ना, डिफरेंट करके निकालेंगे, क्योंकि कंपनी कोड इज ए फिल्टर। ओके। वो फिल्टर डेटा है आपके लिए, फिल्टर करने के लिए। क्लियर? नहीं, फिस्कल ईयर क्रिएटेड एट क्लाइंट लेवल, ये क्यों, रीजन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक क्लाइंट में मल्टीपल कंपनी कोड हो सकते हैं और वो कंपनी कोड एक ही फिस्कल ईयर वेरिएंट से असाइन हो सकते हैं। That means one fiscal year variant can be assigned to multiple company codes because fiscal year are created at client level. It is defined at client level. अगर आपके सपोज 10 कंपनी कोड इंडिया में है तो एक ही V3 के साथ आप 10 के 10 को अलाइन कर सकते हैं। हाँ, बट अगर क्लाइंट हमारा ग्लोबल है, लेट्स सी कि उस क्लाइंट के 10 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर उनकी 10 डिफरेंट कंपनी कोड्स हैं, और एक कंपनी कोड V3 यूज कर रहा है, एक कंपनी कोड K4 यूज कर रहा है। हाँ, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, अगर सपोज यूएस में एक कंपनी कोड है, उसने एक और कंपनी कोड इंट्रोड्यूस किया यूएस में, तो वही सेम 2 डिजिट कोड उस कंपनी के लिए भी यूज हो जाएगा। हमने इंडिया के अंदर आईबीएम इंडिया 1, आईबीएम इंडिया 2, दोनों का वेरिएंट क्या होगा? V3। IBM US 1, IBM US 2, IBM US 3, तीनों का कोड क्या होगा? K4। That means जो हमारा 2 डिजिट फिस्कल ईयर वेरिएंट कोड है which is created above the company code. ओके, दैट मींस कि क्लाइंट लेवल पे हम मल्टीपल फिस्कल वेरिएंट भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये दो तो है ही ना, मल्टीपल तो वही है। हाँ, वही है। देखिए फिस्कल ईयर वेरिएंट क्रिएट होता है कंट्री स्पेसिफिक, कंट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो आपको ये चीजें थोड़ी सी और डेप्थ में समझनी है, आपको थ्योरेटिकली पढ़ना है ये चीजें। गूगल से निकालिए या बुक से पढ़िए।
ओके ठीक है, तो यहां पर हम एक मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट न्यू एंट्रीज में आएंगे। अगर हम देखें तो V3 एक है यहाँ पर, ये रहा, अप्रैल टू मार्च के लिए। और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड्स होते हैं हमारे मंथ, और नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड्स ये हमारी क्लोजिंग एक्टिविटीज करने के लिए होते हैं। बिकॉज आज की डेट में आपने देखा होगा हमें जुलाई 31 तक अपनी सारी बुक्स क्लोज करनी होती है प्रीवियस ईयर की, राइट। जो भी हमारा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था उसकी सारी बुक्स कंप्लीट करनी होती है हमें सब्सिक्वेंट मंथ्स में, जो कि अप्रैल मई जून जुलाई तक चलता है समटाइम्स। तो वो 4 पीरियड्स हम क्लोजिंग एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, उसको स्पेशल पीरियड्स बोलते हैं। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको वही सेम टेबल मिलेगी जो हमने क्रिएट की, यही हमें करना है। तो हम यहाँ आएंगे न्यू एंट्रीज में, इसमें जाएंगे IV अप्रैल टू मार्च 12 एंड 4। अब ये क्या है, ये जो 2 ऑप्शंस और हैं, एक तो है कैलेंडर ईयर का, मतलब जो अंदर वाली टेबल जो मेंटेन हुई है वो कैलेंडर ईयर के केस में नहीं होती अगर आप यहाँ टिक लगा देंगे, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि वो जन टू दिसंबर ही चलेगा। दूसरा है ईयर डिपेंडेंट। ईयर डिपेंडेंट का क्या मतलब है? ईयर डिपेंडेंट होता है कि आप एक फिस्कल ईयर वेरिएंट को मल्टीपल ईयर्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो। कि सपोज आज ये कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए होता है कि आप चाहते हो कि मुझे इस साल सिर्फ 9 ही पीरियड्स मेंटेन करने हैं, 12 नहीं करने, मतलब मेरा बिजनेस 9 ही महीने चलेगा, मैं 9 ही मेंटेन करूंगा। अगले महीने आपको 7 पीरियड मेंटेन करने हैं, मेरा 7 महीने बिजनेस चलेगा। तो ऐसी रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, बट ऐसी रिक्वायरमेंट जनरली होती नहीं है, ये सिर्फ एक ऑप्शन है आपके पास, पीरियड्स न्यू एंट्रीज। तो हम यहाँ आते हैं, इसको उठाते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, डेज पे आते हैं, इसको उठाते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसको लेंगे, तो ये हमारा फिस्कल ईयर वेरिएंट हो गया। अब हम चलते हैं, इसको असाइन करते हैं, असाइन कंपनी कोड टू ए फिस्कल ईयर वेरिएंट। पोजीशन में आएंगे, अपना कंपनी कोड सर्च करेंगे यहाँ से, IBM। IB हमने 2 डिजिट कोड बनाया था। ये देखिए ये क्या आ रहा है, ये किस कलर में है? येलो। क्या मतलब है येलो का? वार्निंग को एंटर करके बाईपास कर सकते हैं। सेव करेंगे, मैंने Ctrl+S किया है, सेव करेंगे। देखिए फिर से आ गया ये। आप चाहें तो नया रिक्वेस्ट बना सकते हैं, अदरवाइज एक लेवल तक की एक्टिविटीज हम इसी रिक्वेस्ट में मूव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इसको। सेव, ये हमारा डेटा सेव हो गया। तो ये हमारा आज का, फिर से एंटर करेंगे, बाईपास करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक था। सो इसको हम इनिशियल लेवल पे ये एक डिटेल्ड डिस्कशन के साथ हम लोग करेंगे, सो दैट आपका जो बेस है वो आपको क्लियर हो जाए। अभिषेक चौहान, यस सर। क्लियर हो रहा है? या सर थोड़ा थोड़ा। सर एक क्वेश्चन था, जो अभी आपने फिजिकल ईयर वेरिएंट क्रिएट किया था IB, तो वो आपने V3 से क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें काफी सारे V3 से थे। मैं समझा नहीं। आपने जो अभी फिजिकल ईयर वेरिएंट क्रिएट किया ना IB नाम से, 2 डिजिट का, तो वो आपने V3 से क्यों नहीं क्रिएट किया वहां पे? कॉपी करके या कर सकते थे, तो फिर सर जब हम बाद में उसको सर्च करते तो हमको प्रॉब्लम होती ना? नहीं, उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है सर्च का। नहीं, जैसे अगर हम उसको फाइंड करते कि V3 का, अब उसमें V3 के काफी सारे थे, आपने नीचे देखा होगा लिस्ट में। काफी सारे कहाँ थे? V3 तो एक ही है। ये देखिए V3 तो, ये कोड कभी डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। आप देखिए ये ना, ओह सॉरी, ये B6 ये कोड कभी डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। जैसे आपकी डेस्कटॉप पे सेम नाम से फाइल नहीं हो सकती, ये कोड भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ओके सर, क्लियर? ठीक है, हम लोग इसको कल कंटिन्यू करते हैं।
कल का है या फिर हमारा क्या है टाइमिंग्स? अब मेरे ख्याल से ट्यूसडे को है। अच्छा ट्यूसडे, ठीक है, हम लोग ट्यूसडे प्लान करते हैं। ट्यूसडे 6:30 है आई थिंक। ठीक है ओके, आज अगर ये हम ट्राई करें कंपनी कोड क्रिएट करना और फिजिकल वेरिएंट को असाइन करना तो करें? हाँ हाँ डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हो ये सब। इसका ना मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भी शेयर करता हूँ, एक वर्ड फॉर्मेट है मेरे पास, उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो। ओके, वो भी भेजता हूँ। ओके फाइन, ओके थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।